जी, वेलकम टू द क्लास। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखा दीजिए हमें भी। जी। यस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बेटा। हम्म। यस, हम ग्रामर पढ़ रहे थे पिछले 2 दिनों से, और आज तीसरा दिन है, वीक का थर्ड डे है। तो ये तीसरा दिन है, इसमें हम टॉपिक्स कुछ ऐसे लेंगे जो कि खत्म करने आसान हो, जल्दी हो। ग्रामर के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे राइटिंग पे भी समय देना शुरू करेंगे, फिर बीच में लिटरेचर को भी ज्यादा समय देंगे, लेकिन पूरी तरह किसी एक सेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। राइट? यस गीतेश, किरण, कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी। हाँ यस, नमस्ते बेटा आर्या। नमस्ते बेटा, सभी कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी। हाँ, गीतेश और मैं मैचिंग मैचिंग है ग्रीन कलर से। यस। So the literature syllabus which you may have seen consists of consists of a number of chapters, and the first chapter is Monkey Trouble. Right? The first chapter is Monkey Trouble. Then there is some poems. Right? And so let us first look at the syllabus. And I will insist everybody to talk in English while we are in the English class, and while we are in the maths class you can talk in Hindi. It's your wish. I will not say, but I will speak in English. You can say in your language, but I will insist you please say in English. I will continue in English. Yes. So the chapter, there are a lot of chapters. The right 11 chapters are there. The first chapter is a Monkey Trouble. The second is a Birdie Will You Pet. The third is A Hero. Fourth is a good chapter, Fight Manju Fight, related to women empowerment. I Dream a World is the next one, based on certain like dreams in your sleep. Stone Soup in Bohemia is an idiotic story. A person how he fools others. A Stormy Adventure is an adventurous story. The Spider and the Fly, it is a beautiful story of how to not get trapped by other people's. The Spider and the Fly. The Human Robot, Friends and Flatterers, and last but not the least, Chocolates in Your Dreams Too. And those who love chocolates, they will love this chapter as well. Let us go ahead. Let us come to the first chapter, that is Monkey Trouble. How a monkey makes trouble. Right? And the chapter is written very beautifully by Ruskin Bond. Ruskin Bond is one of the greatest writers of India. The name is Ruskin Bond and not James Bond 007. It is a Ruskin Bond 00, not 007. He was born in Himachal Pradesh in the year 1934. Brought up at different places, and he was awarded with many medals and is considered one of the greatest writers in English literature from India. Right? Ruskin Bond. His works is mainly focused on children's, small kids. Like, so we will study one of his creation. Okay, there are certain paragraphs. We will go one by one. है ना? यू हैव टू आस्क डाउट्स. ऐसा नहीं कि मैंने बोला इंग्लिश में तो आप अब इंग्लिश में बोले ही ना, है ना? बात खत्म, कहानी खत्म, कोई बोल ही नहीं रहा. ऐसा नहीं करेंगे, है ना? मैं तो वैसे मेरा भी स्ट्रेंथ हिंदी ही है. आई प्रिफर ऑलवेज हिंदी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू बी इन इंग्लिश. स्पीकिंग जब करेंगे तब तो इंग्लिश में ही करेंगे. ठीक है जी, चले शुरू करें. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 मिला के धागा, चो निकल के भागा. वैसे आर्या ही पढ़ेंगे क्योंकि लेटर ए अल्फा ए से शुरू होता है. ठीक है जी, आर्या है ए से. फिर कौन है? फिर कौन है जी? के है ना? ए के बाद के कौन सा? A1 है. के कितना है? 13. एम है. आई जे के एल एम एन एम. के बाद एम आता है ना. आई जे के 11 है. M13 होता है. एंड देन शालिनी और साई, कौन पहले आएगा? साई पहले आएंगे. SA, एंड S इज 19th, है ना? देन S इज अगेन 19th. So we will go with Arya one by one, and one student will start. Yes.
सर मेरे मेरे पहले हितेश का लेटर आता है, मैं थर्ड में हूँ। IJKL अरे KLM भूल गई सब। रीजनिंग K11 है, M13 है। जी, अरे उसका नाम तो जी है ना। अच्छा, नाम जी से शुरू होता है, आपकी मम्मी का नाम लिखा है इसमें हो सकता है। G for 7, G7 राइट, G7। तो वी विल गो विथ आर्या, एंड वॉट एवर आर्या विल स्टडी पैराग्राफ 1, जितेश विल मेक एन अंडरस्टैंड। जितेश हमें समझाएंगे कि आर्या ने क्या पढ़ा, राइट। फिर आगे जब गीतेश पढ़ेंगे पैराग्राफ, फिर गीतेश के बाद जो है जैसे किरण है वो पढ़ेंगी, वो समझाएंगे, फिर किरण पढ़ेंगी तो साई समझाएंगी, साई पढ़ेंगी तो फिर शालिनी समझाएंगी, शालिनी पढ़ेंगी तो फिर से आर्या का नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, चैप्टर इज गुड इनफ, लंबा भी है, सबको मौका मिल भी जाएगा। ठीक है जी, हाँ साई बताओ। सर अगर ये चैप्टर खत्म हुआ हो जाता है तो लास्ट में मैं थोड़ा सा और लंबा कर सकती हूँ, बोल सकते हैं कुछ अपने वर्ड्स से, क्योंकि हमारे मैम थोड़े से और भी इंफॉर्मेशन आगे दिए थे, तो इसका एक पूरा बुक है ना, तो इसीलिए। अच्छा बाद में बताना, अभी बताना, अभी बता दो। मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी से बोल देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। ओ सस्पेंस रख रही है, सस्पेंस। ठीक है, गुड इनफ है ना, वी आर गुड टू गो। रेडी आर्या, गीतेश यू आर रेडी राइट? Arya will study, she will orate the sentences, and Gitesh will make us understand. I will ask the word meanings. जो भी शब्दों के अर्थ हैं मैं पूछूंगा, आप मुझे बताते जाओगे। ओपन योर बुक्स एंड से हा हा हा। चलो जी शुरू करते हैं। यस आर्या प्लीज कंटिन्यू, द स्टेज इज योर्स। Monkey trouble. Grandfather got Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. The man had 3 monkeys. Tutu was the smallest but the most mischievous. He was tied up most of the time. The little monkey looked so miserable with a collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. Grandfather had a weakness for keeping unusual pets. It was the habit that I, at the age of 8 or 9, used to encourage. At the age of 8 or 9 used to encourage, and used to encourage, there are certain words, let me highlight it. Yes, acha, let me say the word meaning which will make Gitesh comfortable with that. Mischievous माने नटखट, मिस्चीवियस माने नटखट, जो खटिए के अंदर छुप करके नट बोल्ट खोलता है वो है नटखट। नटखट है ना, बेड के नीचे छुप जाता है फिर नट बोल्ट खोल देता है, फिर जो बैठते हैं गिर पड़ते हैं वो होते हैं नटखट। ठीक है ना, तो मंकी जो है वो नटखट है। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब अत्यंत, क्या बोलेंगे उसको, दरिद्रता पूर्ण, बुरी स्थिति में, है ना, दयनीय, दयनीय जैसी हमारी स्थिति होती है पढ़ाई में, दयनीय। दयावान प्रभु इस दयनीय स्टूडेंट की बात सुन लीजिए। मिजरेबल मीन्स दयनीय, जिसके ऊपर दया करना पड़ता है, बड़ा ही बुरी स्थिति में वो होता है। हैबिट मतलब आदत, लिखते जाएंगे हाँ, और किताब के पेज में ही लिखते जाएंगे, अच्छा होगा आप वहीं लिखेंगे। तो नई नई किताब मिली है ना सबको, एवरीवन हैज गॉट न्यू बुक्स, ब्रांड न्यू बुक्स, है ना, उसमें मस्त रंगोली बनाइए, चाउमीन पकाइए, कुछ भी करना करिए, साथ में ये भी लिखिए सिनोनिम्स। ठीक है, यस कितेश, द वर्ड्स हैव बीन टोल्ड टू यू, यू आर गुड टू गो। यस प्लीज बताइए, मीनिंग बताइए आपको जो भी समझ में आया। ये पूरा पैराग्राफ, हाँ, इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या समझ में आया आपको, खुल के बोलिए, डोंट वरी। सर आधा आधा करके बोलूंगा सब चले। आधा मतलब पहला से लास्ट फुल स्टॉप तक, उसके दूसरे से लास्ट फुल स्टॉप तक। हाँ, ये पैराग्राफ का जैसा आपको बोलना है वैसा बोलो। जो उसके ग्रैंडफादर थे वो टुटू को एंटरटेनर से 10 रुपए में लेके आए थे, और उसमें वो
एंटरटेनर के पास 3 बंदर थे ओके और उसमें से टूटू स्मॉल छोटा था तीनों में से हम्म और बहुत नटखट था। ओके वो हर ज्यादा समय दुखी रहता था ओके हाँ हाँ और जो एंटरटेनर थे उसको बस उसको चैन से बांध के रखते थे हर वक्त। ओके बड़ा दुखदाई जीवन है। हाँ आगे। उसके बाद ग्रैंडफादर डिसाइड किए कि उसको अपने घर लाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। आगे। और ग्रैंडफादर का वीकनेस था कि वो अनयूजुअल पेट्स को घर में रखते थे। मगरमच्छ, बाघ, भालू, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हाँ आगे। और उनका वो हैबिट था। हम्म और उनका जब 8 और 9 साल के थे वो हाँ तब वो ये लोग को बहुत प्यार करते। अच्छा लगभग लगभग ठीक है। थोड़ा सा समिट अप करते हैं। ग्रैंडफादर ने एक मदारी मदारी कहते हैं उसे, जो बंदरों को नचाता है उसको कहते हैं मदारी। ईश्वर का भी एक नाम मदारी है, क्योंकि ईश्वर हमें नचाता है, कभी कुछ कराता है कभी कुछ कराता है। तो ईश्वर का भी एक नाम मदारी है, भगवान का भी एक नाम मदारी है, उसको मदारी भी बोलते हैं। यस। तो दादाजी ने एक मदारी से टूटू को लेकर के आए। टूटू एक नटखट बंदर है और टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस। तीनों में से सबसे छोटा लेकिन सबसे नटखट है। यहां पर द स्मॉलेस्ट और द मोस्ट लिखा है, दैट मीन्स इट इज द यूज ऑफ आर्टिकल द फॉर सुपरलेटिव डिग्री। जहां पर स्मॉलेस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मार्टेस्ट ऐसा लिखा होगा वहां पर हम लोग द लगाते हैं। उसे मेनली बांध कर रखा जाता था, लेकिन उसकी जो स्थिति थी इस छोटे से नटखट बंदर की बहुत बुरी स्थिति थी, है ना, क्योंकि उसका जो मालिक है मदारी है उसको बांध करके रखा था। तो और हमारे दादाजी करुणा के सागर हैं, उन्होंने सोचा इसके ऊपर दया की जाए, आशीर्वाद देता हूं मैं इसको, लेके आता हूं घर। तो लेके आ गए घर। और मैं जो कि लेखक है, जो कि रस्किन बॉन्ड, आई थिंक उन्होंने अपने ही जीवन से लिखा है। तो जो लेखक है जो छोटा है, अब लेखक की आदत है ना, दादाजी की आदत नहीं है। लेखक जो कि छोटा है, जो कि 9वें साल में जब था वो, जब वो 9 साल का था, 8 और 9 साल का, तब ये आदत उनको बड़ी अच्छी लगती थी और दादाजी को बोलते थे बहुत बढ़िया, सबको लेकर के आओ घर में, घर हमारा चिड़िया खाना बना दो, मस्त रहेगा, लेकर के आओ सबको। तो इस तरह से टूटू घर में आ जाता है। यस। देन लेट अस गो विद गितेश। हाँ ये 2 पैराग्राफ बेटा पढ़िए, और हाँ जब वो पढ़े ना तभी आप उसका मीनिंग समझे, क्योंकि फिर समझ समझ के बोलेंगे तो इट विल टेक टाइम, है ना, सबका समय चला जाएगा, है ना। तो गितेश के बाद किरण है, जब गितेश पढ़ रहे हैं तभी आप उसकी मीनिंग को समझते जाइए। ऐसा ना हो कि लाइन बाय लाइन, और आपको लाइन बाय लाइन बताने की जरूरत है, एक ओवरऑल आइडिया दे दीजिए, राइट। वो फिर मेरा काम है, मैं आप बताता जाऊंगा, राइट। चलिए गितेश, ये 2 पैराग्राफ जो ग्रीन कलर में मार्क किया है उसको पढ़िए। यस प्लीज गो अहेड। Grandmother at first objected to having a monkey in the house. You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather. Goat, several white mice, and a small tortoise. But but I don't have any. I said you are weak, encouraged not to monkey. One boy in the house is all I can take. ओके। यस किरण प्लीज गो अहेड।
fast and easy. Yes. Let me tell the meaning of Yes, sir. let me tell the meaning of some of the words. The word here is use objected, right? I have while telling you the grammar, I have repeatedly mentioned the word object. Object in Hindi is a padarth or thing, right? This is a noun, है ना? This is usually a noun. Usually a noun. एक noun होता है object, लेकिन आप यहां देख रहे हो यहां पर objected है. This is verb. Yes, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले कर सकता है, राइट? तो ऑब्जेक्ट कहीं पे नाउन है, लेकिन यहां पर एक क्या है? वर्ब है. ऑब्जेक्टेड मतलब यहां पर उसने क्या किया? यहां पर उसने उस बात को मना किया. ऑब्जेक्टेड माने मना करना, मना करना कि ऐसा मत करो, जो भी है ऐसा मत करो. रेफरिंग, रेफरिंग मतलब इशारा करना, इशारा, इशारा करना, इंगित करना, इशारा करना. यस, रेफरिंग. एंड विकेड मतलब बदमाश, विकेड मतलब बदमाश, बदमाश. यस किरण, गो अहेड फास्ट. जी. इसका मीनिंग ये है कि ग्रैंड मदर जो घर में थी उन्होंने पहले मना किया ग्रैंडफादर को कि वो अपने घर में मंकी ना रखे, क्योंकि ग्रैंड मदर ने फिर बोला कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेट्स हैं. उन्होंने इशारा किया, इस बात को बोल के वो इशारा करना चाहते थे ग्रैंडफादर के अनयूजुअल पेट्स को, जो थे गोट, white mice and small tortoise. इन तीनों को वो इशारा करके वो ये बात बोली कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेट्स हैं, एक मंकी घर में रखना के लिए वो मना की. फिर बोलती है वो कि फिर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई एक भी पेट नहीं है. दादाजी के पास मतलब ग्रैंडफादर के पास तो पेट्स हैं, पर मेरे पास कोई एक भी पेट नहीं है. तो फिर ग्रैंड मदर उनको जवाब देती है कि तुम उतने ही बदमाश हो जितने दो मंकीज है, मतलब दो बंदर जितने बदमाशी करते हैं तुम अकेले उतना बदमाशी करते हो. एक घर में एक बॉय रहने से, मतलब एक लड़का रहना ही मतलब वो कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उनके मानने के लिए वो जो राइटर थे वो बहुत दो मंकी के जितने बदमाशी करते थे. तो सेंटेंस में दादी जी ने अपने नाती की बेइज्जती कर दी. नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पास पालतू जानवर नहीं, तुम ही खुद जानवर हो, है ना? सीधी सरल भाषा में कहें, वो घर में दो बंदर रहने से अच्छा है एक तो तुम ऑलरेडी हो और एक बंदर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा काम. वो नटखट है, तुम पता नहीं क्या ही करोगे, है ना? इसलिए एक ही लड़का सही है, राइट? नेक्स्ट गो अहेड. चलिए जी, नेक्स्ट कौन है? किरण आप ही हो, तो लेट अस गो विद दिस 2 पैराग्राफ. दिस 3 को ले लो. नेक्स्ट किरण के बाद जो भी हैं साथ साथ समझते जाएंगे, हमें भी समझाते जाएंगे. But Tutu isn't a boy, said grandfather triumphantly. This is a little girl monkey. Grandmother gave in. She had always wanted a little girl in the house. She believed girls were less troublesome than boys. Tutu was to prove her wrong. She was a pretty little monkey. है ना? यस. तो द मीनिंग हियर इज ट्रियम्फेंटली, माने बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ, एकदम. एक तो होता है खुशी, थोड़ा सा एकदम झूमते हुए बोला, है ना? बड़ी खुशी के साथ, उत्साह भरी खुशी के साथ, खुशी के साथ. ट्रियम्फेंटली का भी मीनिंग लिखते चलिए. एंड ग्रैंड मदर गेव इन. गेव इन मतलब आप छोड़ दिया, हाथ खड़े कर देना. गेव इन मतलब हाथ खड़े कर देना कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आपको मैं समझा नहीं सकती, हाथ खड़े कर देना, राइट? जैसे पुलिस के सामने चोर अपने हाथ खड़े कर देता है. ट्रबलसम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, बदमाशी करना, बदमाशी करना. पनौती, आफत कहते हैं ना कोई कोई, अरे ये पनौती आ गया क्लास में, पता नहीं इसको कहाँ ही देख लिया मैंने.
घर से क्या सोच करके निकला था, निकली थी, पता नहीं, किसी को क्या ही देख लिया, अब गया। आज दाना खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, ऐसा होता है कई बार। यस, गो अहेड, बताओ बेटा। इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो ग्रैंडफादर थे नरेटर के, तो वो जो ग्रैंडफादर वो बड़ी खुशी से बोलते हैं कि टूटू ये एक गर्ल है, ना कि बॉय। तो जिसके कारण दादी माँ भी बहुत खुश हो गई और वो भी चाहते थे कि हमारे घर में एक लड़की आए, क्योंकि वे बिलीव करती थी, मतलब विश्वास करती थी कि लड़कियां से ज्यादा, मतलब लड़कियां ज्यादा परेशान खड़ी नहीं करती है, बॉयज ज्यादा परेशान करते हैं। तो टुटू वाज प्रूव हर रॉन्ग, मतलब टुटू वो ये बात सुनकर सोचा कि मैं सही गलत बताऊंगी कि लड़कियां भी बहुत शैतान होते, मतलब बदमाश भी करते हैं, और पर वो देखने में बहुत प्रीति थी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल थी मंकी। गीतेश, ऐसा ही है, लड़के ज्यादा बदमाशी करते हैं? नहीं, पहले तो हाँ, बदमाशी करना लड़कों की फितरत में ही है। बदमाशी नहीं किए, खाना हजम नहीं। लड़कियों की बदमाशी का तरीका अलग है, लड़कों का तरीका अलग। लड़के सीधे बम फोड़ते हैं और लड़कियां सुई चुबो चुबो करके परेशान करती हैं। तरीका अलग अलग है, राइट। तो दादाजी ने बोला, अरे भाग्यवान, रुको रुको रुको, अरे मेरे पास तो बड़ी अच्छी खबर है, ये तो लड़की है, लड़का तो है ही नहीं। तो दादी जी, अरे अब उसने हाथ खड़े कर दिया, अब इसको मैं क्या ही समझाऊंगा, मैं ये बुढ़ा सटिया गया है, मन ही मन में यही सोच रही होगी, बुढ़िया सटिया गया है, छोड़ो इसको। लड़की आई है घर पे, अब लड़की चाहे कोई भी हो, बंदर हो या इंसान हो, लड़की लड़की होती है, घर में बुलाया जाए, है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, मान ही नहीं रहा, है ना। तो सम हाउ टूटू का वेलकम हो गया, लेकिन नरेटर बताते हैं कि आगे टूटू अपने क्रियाकलाप से कैसे दादी जी को भी परेशान करता है। देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। लेट अस गो अहेड एंड, हाँ, दिस इज अ बिग पैराग्राफ, गो विद दिस। जी साई, ये शालिनी आपको समझाना है अच्छे से, सुन अच्छा आपको दिख रहा है ना ये सारा, तो कोशिश करेंगे उड़िया में समझाएंगे, आपको उड़िया समझ में आता है उड़िया में समझाएंगे, हिंदी समझ में आता है हिंदी में समझाएंगे, कोशिश करेंगे जरूर, राइट। चलिए। Her bright eyes sparkled with mischievous beneath deep-set eyebrows, and her teeth, which were fairly white, were often revealed in a grin that pretending scared the wits out of the Auntie Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. But this was my grandparents' house, and aunts and uncles had to put up with our pet. ओके, हाँ, तो पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेट मी गो विथ इट अगेन। हर ब्राइट आई स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, and her teeth, which were pearly white, were often revealed in a green that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow. But this was Dehra, my grandparents' house, and aunts and uncles have to put up with our pets. ठीक है। यस शालिनी, आप कोशिश कर सकती हो, आपके पास किताब नहीं है वैसे ये वाली, फिर भी कोशिश की जा सकती है। बताओगे कुछ समझ में आता है, जो भी समझ में आता है बताओ। यस, नहीं तो एक काम करते हैं, क्योंकि उनके पास किताब नहीं है, मैं समझा देता हूं, आप रीड कर लेना, है ना, डोंट वरी, रीड कर लेना आप। तो होता क्या है कि अब जो टूटू की ब्राइट आईज थी, चमकती हुई ब्राइट आईज थी, है ना, या फिर आर्या आप बता सकती हो, आपने सुना ही बस पैराग्राफ, अब बता सकती हो आप, हम इसी से चेंज ले लेते हैं, आप बताओ, फिर शालिनी अलग पैराग्राफ बता देंगे। हाँ हाँ बोलो।
जो मतलब जो मंकी आई थी उसके जो आंख है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे चमक रही थी जैसे कि वो बहुत ज्यादा ही मतलब बदमाशी करती है। ओके और उसका जो मतलब टीथ है वो वाइट मतलब पर्ली वाइट कलर का है। और ग्रीन का मतलब ग्रीन मतलब ये इलाका। मतलब उसके जो टीथ है वो पर्ली वाइट के हैं। और अ, मतलब वो रिवील ये भी दिखाई देता है उसमें कि उसके जो मतलब अ, हाँ हाँ, उसके जो ग्रीन है वो ग्रीन मतलब ऐसा समझो जैसे हम जैसे बोलते हैं ना मुंह फाड़ के हंसना, ऐसे इस तरह से दांत दिखाते हुए, ये वैसे इस तरह से हंसना। ये ठुड्डी को बड़ा करके, इसको ठुडी बोलते हैं, ठुड्डी को बड़ा करके ऐसे दांत दिखा करके हंसना। फ्राइटेंड और मिट्स का मतलब फ्राइटन मतलब डराना। अच्छा मैं लिख देता हूँ। आपने कई बार बंदरों को देखा होगा, जब आप उसको डराने जाओगे तो ऐसा करता है वो। हमारे घर पे तो रोज का आना जाना है उनका, आते रहते हैं बीच बीच में। अभी 2 दिन पहले आए थे, वो देख करके मुझे ऐसा डराने लगा। एक आंख उसकी फूट गई, तो वो काना काना बंदर है सरदार है वो। एक एक काना बंदर है, और एक की पूंछ काट दी गई है। वो बड़ा बदमाशी करता है वो, उसकी पूंछ काट देगी। वो लोग आकर के एकदम चावल का डब्बा कोई यहाँ से वहां फेंक रहा है, कोई उधर से उधर कर रहा है। एक बार तो एक बंदर हमारे घर में घुस गया, और घुस गया किचन में घुस गया, और इतना चालाक और शातिर है, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठ करके खा रहा है। सच में दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसको पीट पीट करके किसी तरह उसने खोला, फिर भगाया उसको। है ना, इतने बदमाश होते हैं, दिमाग भी होता है उनमें, राइट। तो फ्राइटन मतलब डराना। हाँ, डराना। फ्राइटन मतलब डराना। यस, फ्राइटन मतलब डराना। हाँ, बताओ बेटा। मिट्स का मतलब वीट्स मतलब जैसे होते हैं ना कि जैसे किसी चीज के बारे में एकदम तुरंत कोई नॉलेज होता है, तुरंत किसी चीज को बोल देते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि हंसी मजाक में बहुत चीजें बोल देते हैं, है ना। तो आंट रूबी विट्स आउट ऑफ आंट रूबी मतलब आंट रूबी की हंसी भी गायब उन्होंने कर दी, है ना। उनका जो आंट रूबी जो विट्स बोलेंगे, जैसे तुरंत हाजिर जवाब एकदम तुरंत जवाब देने वाली है, उसको भी डराने वाला था ये मंकी। हाँ आगे। मतलब उसमें उसके जो हंसने का जो स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा ही मतलब डरावना था। हाँ और हाँ, मतलब उसके जो डरावना मतलब हंसने के स्टाइल से जो आंट रूबी है मतलब उनका उनका भी उनका जो आंट रूबी का जो नर्व्स है वो पहले से ही ग्रैंडफादर जो एक दिन ग्रैंडफादर एक पाइथन को घर में लेकर आए थे लखनऊ वाले घर में। और उसी ने अंडू को एक दिन मतलब चोट पहुंचाया था जिसकी वजह से उनका नर्व जो है मतलब वो नर्व्स की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बट दिस वाज Tehra, my grandparents' house, and aunts and uncles had to put up with our pets. और ये जो हुआ था ये सब देहरा नाम की जगह में हुआ था। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो हाउस है वो उसमें आंट और अंकल को आंट और अंकल भी मतलब पेट्स के साथ रहते। ओके ठीक है, आर्या ने बहुत अच्छा बताया। तो इसमें थोड़ा सा जो सेकेंड लाइन है उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। ये जो छोटा सा बंदर है टूटू जो आई है, इसकी हंसी ऐसी थी कि आंट रूबी की जो समझबूझ को भी गायब करने वाली थी। विट्स मतलब हाजिर जवाब, तुरंत तुरंत बताना। तो जो रूबी मौसी थी, उनकी भी समझबूझ गायब करने वाला था ये, इतना डरावना था उसका हंसी। और हुज नर्व्स, नर्व्स मतलब यहाँ पे बीमारी नहीं है, नर्व्स मतलब डर जाना, है ना। वो पहले ही से ही डरी गई है किससे, उनके
जो उनके पापा हैं, ग्रैंडफादर, जो लड़के के ग्रैंडफादर हैं लेखक के, लेकिन उसके जो पापा हैं उन्होंने पहले लखनऊ वाले घर में एक अजगर को लेकर के आए थे, है ना। आपने भी यूट्यूब वगैरह में या नेशनल जियोग्राफिक बहुत बार देखा होगा, कई लोग वो अजगर लेकर के घूमते रहते हैं। यूएसए में वो कॉमन है, यूएसए में अजगर रख सकते हो आप घर पे, इंडिया में इट इज रेस्ट्रिक्टेड। पता चला 2 साल को निकल गया, है ना। सुबह एक बच्चे को निकल गया और शाम को उसी को निकाल रहा है बाहर क्लास करने के लिए, फिर निकल गया, फिर शाम को 6 बजे क्लास करने के लिए निकाल रहा है। ऐसा ही होता है ना वो अजगर, एक बार निगल लिया फिर अंदर ही अंदर पचाएंगे। तो एक बार आप लोग मतलब घर में अगर अजगर लेकर के आओगे, अजगर ने आपको खा लिया तो अंदर रख लेगा, फिर जैसे ही ऑनलाइन क्लास का नोटिफिकेशन आएगा फिर वो निकाल देगा बाहर, फिर आप क्लास करोगे फिर वो अंदर ले लेगा, है ना। तो आंटी रूबी पहले से डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक अजगर ला करके रखा था। लेकिन ये देहरा है, एक दूसरी जगह है जो मेरे दादा दादी का घर है, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर शासन किसका है, दादाजी का शासन है। दादाजी जो बोलेंगे दादाजी वही होगा, है ना। दादाजी कल को एक मगरमच्छ भी ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कहानी में फिर आगे क्या होता है। नेक्स्ट चलिए, हाँ शालिनी आपको दिख रहा है तो आप पढ़ सकती हो, दिख रहा है, उनका नेटवर्क थोड़ा खराब शायद, दिख रहा है तो आप पढ़ सकती हो। ओके चलिए आर्या। One day, Aunt Ruby took us all by surprise. They announced that she had become engaged. We had always thought that Aunt Ruby would never marry. She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, school teacher from Goa. यस एंगेज्ड, यहाँ पे एक शब्द आया है एंगेज्ड, राइट। मैं एंगेज्ड हूं, इसका 2-3 मीनिंग है बेटा। एंगेज आप लिखिए, इसका एक तो एंगेज है बिजी, किसी काम में आप लगे हुए हो, और एक का एंगेज का मतलब है एंगेजमेंट, मतलब सगाई हो जाना। शादी से पहले सगाई होती है, रिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं, है ना। कि अब रिंग सेरेमनी होगी, आप कहीं भाग के नहीं जा सकते, मेरे से ही शादी करना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। तो इसलिए एक सगाई मतलब अब डील फिक्स है, अब डील पक्की है, कोई भी अब पीछे नहीं हट सकता, है ना। करना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला कि पीछे ही हट गए। अब शादी का सारा अरेंजमेंट है, लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, अब बाराती नाचे जा रहे हैं, खाना बट रहा है, लेकिन लड़का लड़के का पता नहीं। तो सगाई इसलिए की जाती है। तो एंगेज, उससे एंगेजमेंट बनता है। तो एंगेज का एक सिंपल मीनिंग है बिजी और दूसरा मीनिंग है सगाई। जी किरण बताओ, मीनिंग बताओ। सर पूरे पैराग्राफ का और क्या बताओगे आप? वन डे एक दिन जो आंट रूबी थी वो हमें एक सरप्राइज दी, मतलब एक नया बात बोली कि उन्होंने घोषणा की कि वो अभी एंगेज हो गई है, मतलब उनकी शादी होने वाली है। और हम मतलब जो राइटर थे उनको हमेशा लगता था कि जो आंट रूबी है वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। उनकी बातों से भी राइटर को लगता था कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। पर अभी लगता है राइटर को कि मतलब जो सही वो प्रकट हो गया है, और उस एक पर्सन के हाँ बोलो रूप में प्रकट हुआ है, जिसका नाम रॉकी फर्नांडीज है, और वो गोवा में एक स्कूल टीचर है। अच्छा, घोषणा की और प्रकट हो गया, है ना, अच्छी बात है। यहाँ पे एक शब्द है अनाउंस्ड, शी अनाउंस्ड दैट शी हैड बिकम एंगेज्ड, है ना। तो देखो अनाउंस्ड दैट शी हैड बिकम एंगेज्ड, मतलब एक तो शब्द है अनाउंस्ड वर्सेस सेड, दोनों में क्या डिफरेंस है जी? अनाउंस्ड और सेड क्या डिफरेंस है गितेश? ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, अनाउंस्ड और सेड? ओके आर्या वांट्स टू से, देखो सब लोग बताने के लिए तैयार हैं, बताना पड़ेगा।
let him speak. हाँ, Gitesh, please say what is announced and what is said. पहले के जमाने में होता था ना, वो भोंपू लेकर के आते थे, सुनो 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 गांव वालों, राजा जी का आज मन है छोले खाने का, कृपया छोले बनाओ, ऐसा बोलते थे पहले, सुनो 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 करके. तो अनाउंस और सेड. यस आर्या बताओ, व्हाट इज अनाउंस्ड एंड व्हाट इज सेड. अनाउंस मतलब किसी न्यूज को हाँ, हाँ. मतलब घोषणा करना, और सेड मतलब सभी को वो बात ऑलरेडी पता है और उसको बस बोलना. ओके, घोषणा करना बिल्कुल सही है. घोषणा कब करते हैं? जब काम हो चुका होता है. काम हो चुका है, केवल आप अभी बता रहे हो, है ना. और इसमें कोई भी अपोज नहीं कर सकता. जैसे यहां पर आंटी ने बताया कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, लो भैया जो भी करना है. अब आप कुछ नहीं कर सकते. अनाउंसमेंट तब होता है कि आपने जो सोचा वही होगा, है ना, लाइक ऑटोक्रेटिक रूल, है ना. मैंने जो बोला, है ना, कल किम जोंग ने बोला कि आज हम मुर्गा खाएंगे, तो आज मुर्गा ही बनेगा, और नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं बनेगा. दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट, है ना. जैसे मोदी जी ने बीच में किया था कि नोटबंदी कर दी, भाइयों बहनों कल रात से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, सब जाकर के बैंक के सामने खड़े हो जाओ. तो दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट. सेड मतलब बताना, है ना, कि मैंने सगाई कर ली है. जब बताया जाता है तो सामने वाला पूछ सकता है, अरे क्यों कर ली तुमने, ऐसे कैसे, हमें नहीं बताया, ऐसे कैसे होगा. तो दैट इज कॉल्ड सेड, बताना. तो बताने पे अपोज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. यस, अब कौन पढ़ेंगे? गीतेश पढ़ेंगे क्या? किरण पढ़ेंगी. हाँ, किरण पढ़ेंगी, गीतेश समझाएंगे. गीतेश जैसे बोल रही हैं वैसे वैसे सुनते जाओ और तुरंत बताते जाना. चलिए. Rocky was a tall, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. He also taught me several marching songs. Naturally, I approved of Rocky. Aunt Ruby won my admiration for having made such a wise choice. ओके, लेट मी टेल सम ऑफ द मीनिंग्स. यस, तो एक मीनिंग है यहाँ पर बेटा, फर्म जॉड. रॉकी वॉज टॉल एंड फर्म जॉड. फर्म जॉड का मतलब है कि जैसे विशेषकर लड़कों में कहा जाता है कि ये जॉ लाइन जिसकी एकदम सीधी होती है ना, देखने में काफी अच्छा लगता है, एकदम सीधा सीधा. खैर मेरा तो नहीं होगा वैसे, खैर जिसका भी है, तो ये ऐसा सीधा सा होता है. बहुत लोग बनाते भी हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं इसके लिए, ऐसे आगे पीछे, ताकि जो जॉ लाइन है वो दिखे. जैसे कोरियन आप जो देखते होगे के पॉप कल्चर में, उनके ऐसे निकल करके सीधा सीधा आता है ना, इसलिए कोरियन लोगों को पसंद करते हैं थोड़ा, है ना. तो ये जॉ लाइन होता है, तो ये जिसका अच्छा होता है देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट. खैर ये है फर्म जॉड का मतलब. मार्चिंग सॉन्ग्स मतलब जो परेड वाले सॉन्ग्स होते हैं, है ना, परेड वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, परेड गीत बोल दो आप इसको. एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, जी. पहले इतना लिखिए किताब में. एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, लेकिन करके करेंगे क्या हम, इसी में दिन निकल जाएगा. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं उगते, उनको बोलता है ऐसे कर. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं बता रहा हूँ, अपने बाबा रामदेव को आप जानते हो, योग कराते हैं, सुना होगा. तो उनके पास, उनको बहुत पहले की बात है, सच कहानी है, राइट. तो उनके पास एक गंजा आदमी आया, बोला बाबा जी मेरे सर पे बाल नहीं है, क्या करें. तो बाबा जी ने बोला बेटा इस नाखून को ऐसा ऐसा घिसना है, उंगलियों के जो नाखून है इसको, ये जो नाखून है 4, इसको घिसना ऐसे. तो बोला ठीक है बाबा जी करेंगे. तो बाबा जी ने बोला हाँ बहुत लोगों का हो गया, तुम्हारे भी बाल उग जाएंगे. तो ठीक है. अब वो व्यक्ति 1 साल बाद आता है ना, 1 साल बाद आता है. अब वो बाबा जी को बोलता बाबा जी मैं आ गया. तो आ गया. अब उसके देखे तो कान में बाल उग गए, इधर से बाल उग गए, इधर से बाल उग गए. तो बाबा जी को पूछता अरे बाबा जी कैसे हो गया, आपने तो बोला था नाखून रगड़ने से बाल उगेंगे सर पे, मेरे तो कान पे उग गए. तो बाबा जी ने पूछा कैसे उग गए तुम्हारे कान पे, क्या किया तुमने. तो आपने जो बताया था,
मैंने क्या बताया था, आपने बोला था उंगलियां घिसो, नाखून घिसो, तो मैंने घिसा, इस तरह से घिसा, है ना। तो बाबा जी ने बोले अरे गधे, मैंने बोला था उंगलियों के नाखून घिसने हैं, ये अंगूठे के क्यों घिसे तुमने, है ना। अंगूठे के घिसे तुमने, इसलिए कान पे बाल आ गए, राइट, इसलिए कान पे बाल आ गए। ठीक है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमें लगता है ना कोई एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, एकदम कोरियन स्किन है, ग्लास स्किन है, तो पता नहीं हमारा भी हो जाएगा, उसके चक्कर में हम बहुत समय लगा दें, है ना। उधर चावल उबाल रहे हैं, चावल का पानी लगा रहे हैं, इधर वो क्या स्प्रे मार रहे हैं, कुछ कुछ लगा रहे हैं, है ना, उसमें काफी समय निकल जाता है, लेकिन फिर होता नहीं है। जी किरण बताओ। सर हमारे जो 6 क्लास के क्लास टीचर थे, हम्म। फिलहाल सर, वो हिंदी पढ़ाते थे, तो वो हमेशा जब भी उनका फेवरेट, मैं जब भी देखती हूँ उनको, वो आइदर ऐसा ऐसा उंगलियों को घिसते रहेंगे, हमेशा उनको देखते हुए ऐसे घिसते रहेंगे। मैं तो मतलब कभी पता नहीं था इसका मतलब ये है बोल के, उनको पता नहीं है क्यों पसंद है, तो हमेशा घिसते रहते हैं। और एक बार हमने उनको पूछा, मैंने पूछा था कि सर आप ऐसे उंगलियों क्यों घिसते हैं, तो सर ने बोला था कि ऐसे ही मुझे पसंद है, ऐसे मतलब ऐसे घिसने से मुझे पसंद आता है तो मैं करता हूँ। अब अगली बार जाकर के पता, सर मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, आपके बाल नहीं है ना, बाल नहीं है ना सर के, बाल नहीं हो गए, है ना, है पर कम है, मतलब कम है, तो मुझे पता चल गया सर आप बाल उगाना चाहते हो, है ना, लेकिन सर आप अंगूठे मत घिस देना, नहीं कि काल के बाल निकल जाए फिर, राइट। जी जी जी, चलिए, हाँ बताओ बेटा गीतेश, क्या मीनिंग हुआ इसका। रॉकी है, लंबा था, लंबा था, बहुत बढ़िया है, लंबा होना चाहिए। हाँ आगे। और उसका जौ मतलब जबड़ा, इसको बोलते हैं जबड़ा, मजबूत जबड़ा, जबड़ा। उसका जबड़ा भी था, गुड नेचर मैन भी था वो। हाँ, नहीं जबड़ा सबका होता है, जबड़ा उसका भी था, लेकिन मजबूत जबड़ा था। जी, आगे आगे। अब ज्यादा पढ़ो मत, जो भी आपने समझा उतना बोलते जाओ, कुछ छूट जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। पूरा पढ़ो मत बेटा, बोलते जाओ, जो समझ में आया हल्का फुल्का बोलते जाओ, बोलो बोलो। हम्म, हाँ, रॉकी ग्रैंड आंट रूबी के घर में विजिट किए। चक्कर लगाता रहता था। आगे। क्वाइट ऑफन का क्या मतलब और है, घूमता रहता था। हाँ आगे। चक्कर लगाता रहता और था, वो और साथ में चॉकलेट और काजू पिस्ता बादाम भी ला करके मुझे देता रहता था, ताकि मैं कुछ कहूँ ना, जो भी है। आगे। और मुझे और मुझे लगता है कि उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई, क्या है। अनलिमिटेड सप्लाई। पता नहीं, जैसा दुकान खोल रखी हो इन्होंने, चॉकलेट और काजू पिस्ता बादाम लेकर के आते, क्योंकि महंगा होता है ना काजू, पता है कि नहीं, बड़ा महंगा होता है, घर में मम्मियाँ छुपा करके रखती हैं, मुझे तो नहीं मिलता वैसे। काजू काजू बड़ा महंगा होता है, आसान नहीं होता, वो टूटे वाले काजू सस्ते होते हैं, बड़ा वाला महंगा होता है। हाँ, ही ऑल्सो टॉट मी,
marching songs. हाँ, उसने मुझे बहुत सारे परेड वाले गाने भी सिखाए। उसने मुझे बहुत सारे परेड वाले गाने भी सिखाए। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, बिकॉज इतना खाना पीना मिल ही रहा है, चॉकलेट काजू पिस्ता बन ही रहा है फ्री में, तो कौन ही मना करे। मैंने भी हाँ कर दे, बढ़िया लड़का है भैया, चलो शादी करा दें आंटी जी की। चलिए, तो प्रशंसा भी मैंने खूब प्रशंसा भी कर दी आंटी जी। क्या क्या लड़का चुना है आपने, वाह, इतना लंबा गोरा चिट्टा लड़का है ना, मजबूत जबड़ों वाला, लोहे भी चबा ले ये तो, इसको रखो, है ना, चॉकलेट भी लेकर के आता है, काजू भी लेकर के आता है, जैसे इसने घर में दुकान ही खोल रखी है, तो इन्हीं से शादी कर लो। तो ऐसा करके मैंने भी, मतलब लेखक ने अप्रूव कर दिया। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। गीतेश पढ़ेंगे यहां से 1 से लेकर के हाँ ये पैराग्राफ तक, साइट तक। चलिए बेटा, गोली की स्पीड के साथ। One day I overheard them talking of going to bazaar to buy an engagement ring. I decided I would go along too, but as Aunt Ruby had made it clear that she did not want me around, I decided that I had better follow at a discreet distance to becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow me. But as I had not invited her along, she decided to keep out of sight. यस, हाँ अब साई बताएंगी। तो यस, आपको ऐसे बताना है ना बेटा, जैसे आप ही अपने आप को सुन रहे हो, है ना। आप ऐसे बताओ कि आप ही अपनी मूवी देख रहे हो, आपको मूवी में जैसे कैरेक्टर पसंद है, जो टोन पसंद है, आप वही प्रोड्यूस करो। लाइक यू आर द एक्टर एंड यू आर द स्पेक्टेटर। यस प्लीज गो अहेड। अच्छा मैं कुछ एक मिनट कुछ मीनिंग बता देता हूँ। ओवरहर्ड मतलब मैंने बात करते हुए सुनना, है ना, बात करते हुए सुनना, इसकी मीनिंग भी लिखते जाए, बात करते हुए सुनना, या है ना, किसी को बात करते हुए सुनना। गो अलोंग मतलब साथ में जाना। लिखते जाएं, छोड़ना नहीं है, वोकैब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। गो अलोंग, साथ में जाना, साथ में जाना। नेक्स्ट हो गया, लिखा? यस गीतेश, लिखा बेटा? Yes, sir. साथ में जाना। डिस्क्रीट का मीनिंग आपकी किताब में दिया है। डिस्क्रीट इज अ एसिड दैट डज नॉट अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब छुप जाना, है ना। डिस्क्रीट छुपना, छुपना, ऐसा करे जैसे पता ना चले। अंडर में मतलब कोई काम चलना, कार्य चलना, कोई काम चलना, कार्य चलना। आउट ऑफ साइट मतलब आंखों से ओझल हो जाना, ओझल हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। सर स्टार्ट करूं? हाँ बेटा। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जो नैरेटर था वे ये बात सुने कि दोनों कपल्स थे, आंट रूबी और पेरेंट्स, तो वे दोनों बाजार जा रहे थे एंगेजमेंट रिंग के लिए खरीदने के लिए। तो मैं भी डिसाइड किया कि वे दोनों साथ में जा रहे तो मैं भी जाऊंगी। पर जो आंट रूबी थे तो वो नैरेटर को इतना पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वे हमारे साथ ना आए। और इसके कारण जो नैरेटर थे वे उनसे दूर दूर छुप के पीछा करने लगे कहाँ तक जाए। तो फिर टूटू भी
उसके पीछे पीछे छिप छिप के भी वो आ रहा था, मतलब कि जो नैरेटर थे वो उन दोनों कपल से छिप छिप के आ रहे था, और जो टूटू था वो भी छिप छिप के आ रहा था नैरेटर के पीछे। तो फिर और ये एक मिशन जैसा हो गया टूटू का, ये एक कार्य जैसा हुआ, कार्य जैसा। तो उसने अपने तरफ से ये एक मिशन बनाया। तो मैं ना, मतलब कि नैरेटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जब इन्वाइटेड ना हूँ फिर भी मैं चले जाता हूँ और उनके साथ खूब भी। हाँ यस। तो हाँ, तो अब इसने कान लगा करके सुन लिया है रस्किन बॉन्ड ने। तो उसने सुन लिया कि ये दोनों जा रहे हैं बाजार और लाएंगे एंगेजमेंट रिंग। बच्चों को वैसे शौक होता है टांग अड़ाने का थोड़ा थोड़ा। बच्चे, वैसे आप बड़े हो चुके हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चे, आप लोग बड़े हो चुके हो। तो उनके बिना पूछे कैसे ये लोग बाजार जा रहे हैं भैया, हमें कैसे नहीं बताया। तो लग गया लेखक को चलना चाहिए भैया, रस्किन बॉन्ड अब जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं। जेम्स बॉन्ड की तरह छुपते 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 वो पीछे चले गए। लेकिन इसके पीछे और एक चोर छुपा है, टूटू। टूटू को लगा था भैया कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पता लगाना पड़ेगा। अब टूटू बन जाता है कौन, इंस्पेक्टर प्रद्युमन। अब प्रद्युमन तो पता लगाएंगे, तो वो भी टूटू भी छुपते छुपाते हमारे रस्किन बॉन्ड के पीछे चल पड़ता है। नेक्स्ट, लेट अस टेक अ फाइनल पैराग्राफ फॉर टुडे। सब बोलूं? यस यस। Once in the crowd, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. I waited still. They had settled down in a large jewelry shop before turning past and spotting them as through by accident. Aunt Ruby wasn't too pleased at seeing me, but Rocky waved and called out to come and join, help your aunt choose a ring. यस ओके। तो इसमें कुछ शब्द हैं, वैसे ज्यादा तो नहीं। स्पॉटेड, स्पॉट करना, किसी का पता लगा लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, पता लगाना, स्पॉट कर लेना, पता लगाना, पता लगाना। एंड शॉन्टरिंग, SAUNTERING, sauntering, before sauntering past, sauntering means walking in a slow and relaxed manner, है ना, जैसे धीरे धीरे दबे पांव चलना। sauntering मतलब दबे पांव चलना। द परफेक्ट वर्ड विल बी दबे पांव चलना, दबे पांव चलना। यस यस आर्या। एक दिन एक बहुत मतलब जो जो बाजार में आंट रूबी और रॉकी गए थे, और जो नैरेटर थे वो आंट रूबी और रॉकी को चुपके से पीछे से मतलब देख रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर नैरेटर कुछ समय वेट किए, फिर वो देखे कि जो वो दोनों आंट रूबी और रॉकी एक बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप में मतलब ज्वेलरी देख रहे हैं, उनके एंगेजमेंट रिंग देख रहे हैं। फिर नैरेटर उनको पीछे से मतलब धीरे धीरे पीछे से वो देखे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। फिर आंट रूबी जो है वो नैरेटर को देख नहीं पाई, लेकिन रॉकी उस नैरेटर को देखे, फिर उसको अपने पास बुलाए और बोले कि तुम भी आओ और हमें ज्वाइन करो। हमारे मतलब तुम्हारे आंट के लिए एक ब्यूटीफुल रिंग चूज करनी है। तुम्हारे आंट के लिए एक ब्यूटीफुल रिंग चूज करना है। अच्छा, हियर let me ask you something. Yes, here is a line.
that says, look at this line, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. यहाँ तक है, right? यहाँ तक है. So can you tell me, I was able to get quite close. Can you tell me the part of speech of quite? Can you tell me the part of speech of quite? Anybody? Yes, Kiran. Sir, adverb. Adverb. Okay. Anybody else? No. और कोई नहीं बताएगा? बोलो बोलो. आर्या. और मेरे हाथ से होगा एडवर्ब, क्योंकि जो क्वाइट है वो क्लोज को डिस्क्राइब कर रहा है, और एडवर्ब में जो वर्ड प्रोनाउन या फिर नाम को डिस्क्राइब नहीं करता है वो एडवर्ब. Yes, get quite close to Aunt Ruby, right? So close here is a verb. नजदीक जाना, और काफी नजदीक जाना is quite, right? अच्छा, एक quite ये होता है ना, keep quiet, QUIET. Yes, this is the spelling. This is called quite, and this is also, this is quiet, and this is quite. Quiet, right? Please keep quiet. एट लगाते हैं इसमें ना, क्वा जैसे हिंदी में बोलेंगे, क्वा एट, इस तरह से. एंड दिस इज क्वाइट, क्वा क्वाइट, राइट? बोथ आर होमोनिम्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स. क्वाइट मतलब शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, और क्वाइट मतलब काफी, काफी नजदीक जैसा, काफी, राइट जी? तो ये दोनों मीनिंग है क्वाइट के और क्वाइट के जी. लिखा ना? लिखते चलो, लिखते चलो. ये फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा, फिर ओलंपियाड कुछ भी अपियर करोगे तो आ सकता है कहीं भी. लिखते चलो, मैं जो भी लिखाता हूं लिखते चलो. बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी चल रही है. आगे देखेंगे कि क्या होता है टूटू के साथ, या टूटू किसको क्या कर देता है. टूटू के साथ तो क्या ही होगा, वही दूसरों को कुछ ना कुछ कर देगा, है ना? तो आगे की कहानी में हम देखेंगे क्या होता है. और कल सुबह संडे, संडे इज अ फन डे. फन डे आपको पता है, सुबह 9 बजे हमें मिलना है, राइट? सुबह 9 बजे हम सभी मिलेंगे. कोई कहीं जाएगा नहीं? यस गीतेश, कहीं जाएंगे नहीं. सुबह 9 बजे इस वीक में जो भी पढ़ाई हुई है वो कल हम प्रैक्टिस करेंगे एक टेस्ट के माध्यम से, राइट? सुबह 9 बजे, ठीक है जी? चले. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्. Thank you so much for your time. Take care. Tata. Goodbye.